صراطا مستقيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں جا کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس مالک کائنات کا احسان ہے کہ جو اس نے ہم تمام کو گزشتہ ہفتے کی طرح جمع فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم کو اس منزل کے اندر جمع فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ معزز سامعین، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ اکرام نے کس کس طریقے کی قربانی پیش کی، کس طریقے سے مصیبتوں کو جھیلا، میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاتا چلتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا اور یوں فرمایا، او میرے صحابی، تم جاؤ اور سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی چلتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، او صحابی، یہ سنتا جا، سعد جب تجھ کو ملے اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا، او سعد، تجھے آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ کے اندر بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی چلتے ہیں اور سعد بن ربیعہ کو تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے شہداء میں دیکھا، سعد نہ ملا، میں نے زندوں میں دیکھا، سعد نہ ملا، میں نے زخمیوں میں دیکھا، سعد نہ ملا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ زخمیوں کی تہ لگی ہوئی ہے، اس تہ کے نیچے حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ میں نے اوپر سے زخمیوں کو ہٹایا اور نیچے سے سعد بن ربیعہ کو کھینچا اور فرمایا، او سعد، تجھے آقا علیہ السلام نے سلام کہا ہے، اور آقا نے فرمایا کہ سعد کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، جب میں نے سعد سے کہا، سعد، تجھ کو آقا علیہ السلام نے سلام کہا ہے، حضرت سعد بن ربیعہ کا چہرہ دمک اٹھا، حضرت سعد بن چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی اور زخمی شیر کی طرح کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں کہ سعد بار بار کھڑا ہونا چاہتا ہے اور پھر گر جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے، او سعد، میں تیرا سلام آقا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ سعد نے کہا کہ اے صحابی، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو تو فرمانا، آقا، سعد کے لیے دعائے مغفرت فرمانا، سعد کے لیے دعائے مغفرت فرمانا، اس لیے کہ آج سعد اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ آج سعد کے سامنے جنت کو سجا دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی چلتے ہیں، سعد بن ربیعہ ان کی قمیض کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، او سعد، ایک پیغام تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، اور ایک پیغام میری انصار قوم کو جمع کر کے کہنا، میری انصار قوم کے نوجوانوں کو جمع کرنا اور سارے کے سارے کو جمع کر کے کہنا، تمہارا جو سردار سعد بن ربیعہ ہے اس کی آخری تمنا یہ تھی، وہ یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ اے ساری کی ساری قوم، اے نوجوانوں، اے انصار، تم سارے کے سارے اپنی گردن کو کٹا دینا، تم سارے کے سارے اپنے جسم کو کٹا دینا، تم سارے کے سارے اپنی زندگی کو ویران کر دینا، اپنی بیوی کو یتیم کرا دینا، اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دینا، اپنے بچوں کو یتیم کرا دینا، لیکن آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی نہ کرنا۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں پیغام لے کر کے چلا اور سارا رستہ میں روتا ہوا چلا۔ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا، آقا، سعد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آقا علیہ السلام سے کہنا کہ سعد کے لیے دعا کریں۔ آقا علیہ السلام کے رحمت والے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ، میں سعد سے راضی ہوں، اے اللہ، میں سعد سے راضی ہوں، اے اللہ، میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی سعد سے راضی ہو جا۔ معزز سامعین، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب میں گلی سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے چبوترے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بچی ان
है। मैंने कहा ए अबू बकर ये आपकी बेटी है, ये आपकी पोती है। हजरत अबू बकर ने फरमाया ना, ये मेरी बेटी भी नहीं है, ये मेरी पोती भी नहीं है। मैंने फरमाया अबू बकर ये कौन है? तो हजरत अबू बकर ने कहा ये साद बिन रबिया की यतीम बच्ची है। साद पूरी कायनात को तो पैगाम दे करके गया है, और मेरी कौम के नौजवानों तुम अपने जिस्म को कटा देना, अपने हाथों को कटा देना, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर आँच ना आने देना। साद ने पूरी कौम को तो पैगाम दिया, लेकिन अपनी बच्ची को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में छोड़ करके गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बूढ़ी सहाबिया है उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा, 70 साल की उम्र है। उनका बूढ़ा बाप भी मैदान जिहाद में है, उनका बूढ़ा शोहर भी मैदान जिहाद में है, उनका नौजवान बेटा भी मैदान जिहाद में है, उनका भाई भी मैदान जिहाद में है। किसी ने गलत खबर उठा दी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी लाठी को उठाती है और मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल के आती है। एक सहाबी फरमाते हैं ए उम्मे अम्मारा तेरे बाप को शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा फरमाती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बताओ मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर एक सहाबी आते हैं और फरमाते हैं ए उम्मे अम्मारा तेरी आंखों के तारे, तेरे लखते जिगर तेरे बेटे को भी शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा फरमाती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे जरा ये तो बताओ मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? फिर थोड़ी और आगे बढ़ती है, किसी ने कहा ए उम्मे अम्मारा तेरे बूढ़े शौहर को भी शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा फिर कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे जरा ये तो बताओ मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? उम्मे अम्मारा फिर आगे बढ़ती है, किसी ने कहा ए उम्मे अम्मारा तेरे भाई को भी शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा फिर कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे जरा ये तो बताओ मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? सहाबा के दिल की तमन्ना थी कि हम कट जाएं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आँच ना आए। दो सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मुहाजिर सहाबी है, एक अंसार सहाबी है। जंग का मैदान शुरू हो जाता है, दोनों सहाबी फरमाते हैं कि मेरे भाई हम दुआ करते हैं, हम दोनों दुआ करते हैं, पहले मैं दुआ करूंगा, तुम मेरी दुआ पे आमीन कहना, फिर तुम दुआ करना, मैं तुम्हारी दुआ पे आमीन कहूंगा। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु और एक अंसारी सहाबी, दोनों सहाबा दुआ करते हैं। चुनाचे हजरत अंसारी सहाबी दुआ करते हैं ए अल्लाह कल मैदान लगे मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मनों को कत्ल कर दूं, मैं बड़े बड़े जर्नैलों को कत्ल कर दूं। चुनाचे दूसरे सहाबी आमीन कहते हैं, फिर अंसारी सहाबी का नंबर आता है, अंसारी सहाबी कहते हैं, हाथ उठाते हैं और फरमाते हैं ए अल्लाह कल तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मनों को कत्ल कर दो, उसके बाद कोई बड़ा दुश्मन आए मेरे सीने पर बैठ जाए, मेरी आंखों को निकाल ले, मेरे हाथों को काट दे, मेरी टांगों को काट दे और पहाड़ के ऊपर मेरे टुकड़ों को बिखेर दे। ए अल्लाह कल कयामत के दिन जब मैं तेरी बारगाह के अंदर हाजिर हूंगा तू मालूम करेगा ए नौजवान क्या लेकर के आया है। मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके कहूंगा ए अल्लाह तेरे रास्ते में अपनी आंखों को निकलवा कर आया हूँ, तेरे रास्ते में अपनी गर्दन को कटा कर आया हूँ, तेरे रास्ते में अपने बाजुओं को कटा करके आया हूँ, तेरे रास्ते में अपनी टांगों को कटा करके आया हूँ। फिर अल्लाह मुझसे फरमाएगा ए मेरे बंदे तू क्या चाहता है? फिर मैं यही कहूंगा सुम्मा कतला सुम्मा उहिया, सुम्मा कतला सुम्मा उहिया, सुम्मा कतला सुम्मा उहिया। ए अल्लाह दोबारा दुनिया के अंदर भेज, मैं फिर ये मजा चखना चाहता हूँ। चुनाचे वो सहाबी फरमाते हैं, अंसारी सहाबी फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि उसकी दुआ कबूल हो गई। मुहाजिर सहाबी फरमाते हैं जब मैं पहाड़ के किनारे आया मैंने देखा उस अंसारी सहाबी के टुकड़े पड़े हैं, मैंने भी आसमान की तरफ हाथ उठाए, ए अल्लाह काश के मैं भी ये दुआ कर लेता और मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर कुर्बान हो जाता। उहद के पहाड़ के बराबर में मुअज़्ज़ज़ सामीन 3 कब्र हैं। एक कब्र हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु की है, दूसरी कब्र
आखिर वाली हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है, बीच वाली कब्र हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है। कौन हमजा कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सय्यदुश शुहादा, कि हमजा तमाम शहीदों के सरदार है। चुनाचे मौत सामीन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जंग लड़ रहे हैं और दुश्मनों ने चारों तरफ से हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को घेर लिया है और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की पीठ के अंदर एक तीर लगता है, दो तीर लगते हैं। किताबों के अंदर आया 14 तीर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की पीठ पर लगते हैं। हजरत हमजा फिर भी मुकाबला करते हैं। जब रहा न गया हजरत हमजा जमीन पर लेट जाते हैं, आंखों के अंदर आंसू है और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु अभी जिंदा है। एक औरत आती है, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की पीठ को चाक करती है और कलेजों को निकालती है और चापना शुरू कर देती है। फिर कुछ लोग आते हैं, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के सर के ऊपर कुल्हाड़ी बजाते हैं और सर को जुदा करते हैं और उसके अंदर शराब को भरते हैं और शराब को पीते हैं। चुनाचे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पौध पहाड़ की तरफ चले, सहाबा ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पौध पहाड़ की तरफ ले जाना। फरमाया क्यों? कहा कि आपके चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है, उनके जिस्म के 11 टुकड़े कर दिए गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं बैठ जाते हैं और गमगीन हैं और रो रहे हैं। चुनाचे क्या देखते हैं कि सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को खबर मिली कि सफिया तेरे भाई को शहीद कर दिया गया, तेरे भाई के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, तेरे भाई के सर के अंदर शराब को भर करके पिया गया। चुनाचे हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा एक कपड़े को लेकर चलती है और ओहद पहाड़ की तरफ को जब चढ़ती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ओ सफिया रुक जा, मैं भतीजा होकर अपने चाचा के जिस्म को न देख पाया, तू बहन होकर के कैसे अपने भाई के जिस्म को देख पाएगी? हजरत सफिया फरमाती है कि अल्लाह के नबी मुझे अपने भाई का दीदार करने दो। चुनाचे हजरत सफिया रज़ी अल्लाह हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की जब जनाजे के धोरे जाती है तो देखती क्या है, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के 11 टुकड़े पड़े हैं, कहीं उंगली पड़ी है, कहीं गर्दन पड़ी है, कहीं टांग पड़ी है, कहीं जिगर पड़ा है। चुनाचे हजरत सफिया रज़ी अल्लाह एक उंगली को उठाती है और फरमाती है और उस उंगली को लेकर इतना रोती है, ए मेरे भाई ये तेरी वो उंगली है जो मेरे सर के ऊपर आती थी, ए मेरे भाई जब तू मोहब्बत से होता था इस उंगली को तो मेरे गाल पर फेरा करता था, और मेरे भाई ये उंगली वो है कि जिस उंगली को पकड़ के मैं चला करती थी। ए मेरे भाई आज तो दुनिया से रुखसत हो चुका। और हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं ए अल्लाह मेरे भाई के सदके में तुम मेरी मगफिरत फरमा देना। चुनाचे अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ सफिया को रोको, ओ सफिया तू ये ना कह मेरी मगफिरत फरमा देना, बल्कि आज ये कह ए अल्लाह मेरे भाई के सदके में मेरी पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा देना। चुनाचे 11 टुकड़ों को लेकर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलने लगे तो पीछे से रोने की आवाज आई। किसी ने मानो आका अलैहिस्सलाम ने सर फेरा और फरमाया कि कौन रोता है? सहाबा ने फरमाया आका हम नहीं रोते, आज ओहद पहाड़ रोता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहद पहाड़ आज किस लिए रो रहा है? मेरे चाचा के तो 11 टुकड़े पड़े हैं। चुनाचे ओहद पहाड़ से आवाज आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा को मेरे अंदर दफन कर दो, कल कयामत तक लोग मुझको हजरत हमजा की जियारत करने आएंगे, साथ में मेरी भी जियारत कर जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ओहद पहाड़ कयामत का दिन होगा, तमाम के तमाम पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा, तमाम के तमाम पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, लेकिन तूने मेरे चाचा से मोहब्बत की, इसके सदके में अल्लाह ताला तुझको जन्नत के अंदर सजा देगा। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए।